لاہور میں صبح سویرے تیز بارش ابر رحمت برسنے اور ٹھنڈی ٹھار ہواؤں سے موسم پھر سے سہانا ہو گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں اب بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن بھر بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حافظ محبوب علی سے۔ حافظ بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہے موسم کی صورتحال کے حوالے سے؟ بالکل صبح کے وقت جو ہے لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد جو ہے موسم کافی زیادہ سہانا ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ شہر میں سرمئی بادلوں کا راج ہے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 90% ہے جبکہ ہوائیں جو ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ موسم بتانے والوں کا کہنا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آج اور کل تک جاری رہے گا جبکہ آج سارا دن جو ہے وہ لاہور شہر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کو یہ بتایا چلے کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آئے گی اور درجہ حرارت بھی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوگا جس کے بعد جو ہے وہ شہر میں موسم جو ہے وہ سہانا رہے گا۔ جی وزیراعظم شہباز شریف کا شانگلہ میں تودہ گرنے سے جاں بحق 8 بچوں کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ وزیراعظم نے ہر جاں بحق بچے کے اہل خانہ کے لیے 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ جاں بحق 8 بچوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے وقت رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی میں فائرنگ، 4 بھائی موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جرگے کے دوران پیش آیا۔ جرگہ جائیداد کے تنازع پر ہو رہا تھا۔ مقتولین میں ملک وحید، شکیل رفاقت اور نثار خان شامل ہیں۔ کشمور میں ڈاکو راج برقرار ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ محافظ بھی غیر محفوظ ہیں۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایس ایچ او گل محمد 1 ماہ قبل کندکوٹ سے اغوا ہونے والے کمسن بچے کی بازیابی کے لیے آپریشن میں مصروف تھے۔ فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد میں پولیس حراست کے دوران مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات نوجوان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا اور لاش نالے میں ڈال دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کی حمایت کر دی۔ یوکرینی ہم منصب سے ملاقات میں ترک صدر نے روس اور یوکرین کو امن کے لیے بات چیت کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا صدر پیوٹن بھی آئندہ ماہ ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ کا یوکرین کو نئے فوجی پیکج میں کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے کا اعلان، صدر جو بائیڈن نے منظوری دے دی۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کئی ماہ بحث کے بعد یوکرین کو کلسٹر بم کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ امریکی انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس کا پینٹاگون کی بریفنگ میں یوکرین کو کلسٹر اسلحہ بھجوانے کا دفاع۔ کہا یو این کنونشن میں امریکہ سمیت نیٹو کے 31 میں سے 8 اراکین نے کنونشن کی توثیق نہیں کی۔ امریکہ کا یوکرین کو نئے فوجی پیکج میں کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے کا اعلان، صدر بائیڈن نے امریکی کلسٹر گولہ بارود کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ نیدرلینڈز میں مائیگریشن اور پناہ گزینوں سے متعلق پالیسیز پر حکومتی اختلافات کے باعث اتحادی حکومت ٹوٹ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم مارک روٹ کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ نیدرلینڈز میں اتحادی حکومت 1.5 برس قائم ہوئی تھی۔ وزیر اعظم مارک روٹ کے قدامت پسند پارٹی تارکین وطن کی آمد روکنے اور پناہ گزینوں سے متعلق قوانین کو محدود کرنے کی حامی تھی۔ یونان کشتی حادثے کے بعد بھی تارکین وطن کا یورپ میں غیر قانونی طریقے سے داخلے کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والے 250 تارکین وطن کی کشتی کو مالٹا کے قریب مشکل حالات کا سامنا ہے۔ ایمرجنسی کال کر دی گئی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں بندرگاہ میں لنگر انداز کارگو جہاز میں آتش زدگی، 2 فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں جھلس کر 5 فائر فائٹرز شدید زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ جہاز کے 3 فلور پر لگی جہاں 1200 گاڑیاں لوڈ تھیں جن میں سے درجنوں تباہ ہو گئیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں یوم تقدیس قرآن پر پورا پاکستان یکجان اور یک زبان۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور احتجاج، شہری بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ مظاہرین نے سویڈش سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا۔ کراچی سے خیبر، چمن سے گلگت تک شہری سڑکوں پر نکلے، مقدس کتاب کی بے حرمتی کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ جب بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے۔ قرآن ہمارے لیے صرف قرات نہیں بلکہ جینے کا قرینہ ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर पैगाम सानिह पर पूरी उम्मा मुस्तरब है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत, कहते हैं स्वीडन में कुरान की बेहुरमती इस्लामोफोबिक जहनीत की एक और मिसाल है। ये हमारे अक़ीदे को बदनाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान 11 जुलाई को जनीवा में UNHRC के मुबाहिसे में कुरान पाक की बेहुरमती का मसला उठाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामी के मुताबिक लिम्स के क़याम का मकसद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और ज़रई बरामदात को बेहतर बनाना है। जदीद निज़ाम दही इलाकों की फ़लाह व बहबूद यकीनी बनाएगा। कम पैदावार वाली अराज़ी को बेहतर बनाकर कौमी ख़जाने पर दरामदी बोझ को कम किया जाएगा। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन को मंसूबे में शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक लिम्स का क़याम पहला गैर मामूली इक़दाम है जिसका मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और ज़रई बरामदात को बेहतर बनाना है। इस तरह मुल्क के अंदर लाखों एकड़ कम पैदावार वाली अराज़ी को तब्दील करके कौमी खजाने पर दरामदी बोझ को कम करना है। ये जदीद तरीन निज़ाम ज़मीन की ज़रई माहौलियाती सलाहियत पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजीज और पायदार दुरुस्त ज़रई तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और इनमें से 18.3% को खुराक के शदीद बहरान का सामना है। मुतवक्के आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल की घरेलू खुराक की ज़रूरियात से निमटने के लिए कौमी सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी क़यादत ने फैसला कुन और बामायनी इक़दाम उठाने का फैसला किया है। तकरीब में वफाकी वज़रा, सूबाई हुकूमत के चीफ सेक्रेटरीज, ज़रई माहिरीन और फौज के आला हुकाम ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ का IMF डील की हिमायत का ऐलान। IMF की नुमाइंदा की चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई। एस्थरा पेरेस के 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी भी शरीक हुए। हम्माद अज़हर ने ट्विटर पैगाम में कहा, IMF डील की कलीदी पॉलिसीज़ की हिमायत करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। HEC तरमीमी बिल 2023 से आला तालीमी कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़तरात लाहक हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने HEC बिल को तालीमी इदारों पर कदगन करार देते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एप्सिप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख कर आला तालीम के फ़रोग़ और HEC की खुद मुख्तारी में हायल रुकावटें दूर करने का मुतालबा कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी पर हमला नामंजूर। वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिखे गए खत में कहा गया है कि HEC तरमीमी बिल 2023 कई खदशात को जन्म देता है। बिल से आला तालीम के मयार और फरोग पर मनफी असरात पड़ेंगे। इस बिल से पाकिस्तान के आला तालीमी कमीशन HEC की खुद मुख्तारी को भी नुकसान पहुँचेगा। खत के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है कि बिल में शामिल सेक्शन 2 में एक नई शिक्के इंदराज से HEC की खुद मुख्तारी मुतासर होने का खदशा है। सेक्शन में तब्दीलियों से HEC का किरदार मुतासर होगा, जबकि सूबाई हायर एजुकेशन कमिश्नर्स की खुद मुख्तारी पर भी असरात मुरतब होंगे। सूबों की यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी और क़याम भी महदूद किया जा रहा है, जिससे आला तालीम के फरोग में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। सेक्शन 11 में तजवीज़ करदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री के लिए वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया गया है, जो कि अहम ओहदे पर मुमकिन सियासी असर रसूख बढ़ेगा। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खत के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील की है कि वो मुल्क के आला तालीमी कमीशन और यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी को दरपेश खतरात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करें। ऐप ने जोर दिया कि HEC ऑर्डिनेंस 2002 में की जाने वाली तरमीम से कमीशन और तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी पर असरात नहीं पड़ने चाहिए। एसोसिएशन ने मजीद कहा, ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत महंगाई को लगाम डालने में नाकाम है। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 28.55% तक पहुँच गई। शहराज अहमद शहराजी रिपोर्ट करेंगे। शहर शहर अवाम की दुहाई, मार गई महंगाई। इदारा शुमारियात के एदादो शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते 24 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। 20 किलो आटे का थैला 106 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ। टमाटर की फी किलो कीमत 23 रुपए 15 पैसे बढ़ी। लहसुन 6 रुपए 48 पैसे फी किलो महंगा हुआ।
प्याज की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे इजाफा देखने में आया। आलू फी किलो 4 रुपए 16 पैसे महंगे। चीनी की कीमत 4 रुपए 44 पैसे फी किलो बढ़ी। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि डॉलर सस्ता होने पर कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए। आटा जो है ना इतना महंगा हो चुका है कि आटा जो है वो खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। क्या गुजारा करना है जी, कुछ समझ ही नहीं आती है। दिन को सारा दिन इधर गाड़ियों की पार्किंग में होते हैं, हम काम शाम करते हैं, शाम को जब घर जाना होता है तो यकीन करें कि पेट्रोल डाल के बाकी आटे के लिए भी नहीं बचते हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 28.55% तक जा पहुंची। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शराजी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले बाबाए खिदमत को आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत ही अब्दुल सत्तार ईधी का मकसद हयात था। उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी उनको नवाजा गया। नाज़रीन, सरकारी कुत्तों को रिटायरमेंट पर प्रोटोकॉल का आलमी तरीक़े पाकिस्तान ने भी अपना लिया। जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करने वाले 6 सुराग रसा कुत्तों को नौकरी की मुद्दत पूरी होने पर एज़ाज़ात से नवाजा गया। दिलचस्प रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा नियो हमाद असलम। जराइम का सद्देबाब हर जुर्म पर नजर, ये है पंजाब पुलिस के होनहार तरबियत याफ्ता जानवर। आखिरकार इनकी खिदमात का सरकारी सतह पर हुआ एतराफ। 6 सुराग रसा कुत्तों को मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर एजाजात से नवाजा गया। 3 कुत्तों को मुख्तलिफ अफराद ने गोद ले लिया और इनकी कफालत अपने जिम्मे ले ली, जबकि दीगर 3 कुत्तों को जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम के हवाले कर दिया गया। रिटायर्ड होने वाले कुत्तों को एजाज देने का सेहरा सजा SSP गुलबर्ग की सर, जिन्होंने खुद IG पंजाब से दरख्वास्त की। इससे कबल रिटायर्ड होने वाले सुराग रसा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन लगाकर अब्दी नींद सुला दिया जाता था, जबकि अमेरिका और बरतानिया में सुराग रसा कुत्तों को रिटायरमेंट पर ऐसे ही एजाजात से नवाजा जाता है। देर आयद दुरुस्त आयद, ये मुहावरा पूरा हुआ पंजाब पुलिस में। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के पुलिस डिपार्टमेंट्स की तर्ज पर पंजाब पुलिस का ये इकदाम यकीनन खुशाइंद है। कैमरामैन फरहान के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज़, लाहौर। कौमी क्रिकेटर की शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी में तकरीब में शिरकत। कराची में मौजूद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, हसन अली, आमिर जमाल शरीक हुए। साबिक क्रिकेटर्स मोइन खान, अरशद खान, मोहम्मद अकरम और वक़ार यूनिस की भी शिरकत। तकरीब में शाहीन अफरीदी मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ़ रहे। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के तीनों बॉडी बिल्डर्स की शानदार कारकर्दगी, 3 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। शहजाद कुरैशी ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीयों को पिछाड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। शहजाद कुरैशी ने गुज़िश्ता इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता था। इब्राहिम खान ने जूनियर कैटेगरी के 75 किलोग्राम और शाहिदुल्लाह ने 70 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में बरतानवी स्टार एंडी मरे का सफ़र तमाम हो गया। एंडी मरे को यूनान के स्टेफनस स्टेप्सिस ने शिकस्त दे दी। यूनानी टेनिस स्टार ने 7-6, 7-4, 6-6 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। पेरिस में टॉप फैशन डिज़ाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। इवेंट में हुस्न और रंगों के जलवे बिखर गए। पेरिस फैशन वीक में हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों की कहकशां उतर आई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।